In this video, I will be taking up numerical on solid state, but in this particular video, the numerical that I am taking up are very basic ones. Now, the basic numericals means जिनके अंदर we will be calculating number of atoms per unit cell or the formula of the compound by the information given in the numerical. Now, the numericals are very simple, they are very basic, but in basic numerical के बिना you cannot go ahead in solid state. तो आपको इन न्यूमेरिकल की क्लैरिटी होनी चाहिए, इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी होनी चाहिए, so as to further go in solid state. So please go through the whole video. So I am starting with the first numerical. Okay, so the first numerical is a compound formed by elements X and Y crystallizes in the cubic structure where Y atoms are at the corner of the cube and X atoms are at the alternate faces. What is the formula of the compound? So I told you that we will be taking up numerical जिसमें हमें formula निकालना होगा. तो फॉर्मूला निकालने के लिए कंपाउंड का जो इंफॉर्मेशन हमें गिवन होती है उसको हम ऐसे यूज करते हैं कि हमें ये गिवन है कि दीज पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ एटम्स आर एट द कॉर्नर फेसेस. जैसे यहाँ पे दिया है कि y atoms are at the corner and x at alternate faces. So what we do, we will calculate number of y atoms per unit cell, number of x atoms per unit cell and उनकी रेशियो निकालते हैं जिससे we will be calculating up the formula of the compound. So now एक चीज और देखिए, जितने भी ये न्यूमेरिकल है इसमें सभी क्यूबिक स्ट्रक्चर है. सो यू हैव स्टडीड 7 टाइप ऑफ लेटिसेस, but in these numerical we will be taking up cubic lattice because that is the most common type of lattice. तो सारे न्यूमेरिकल क्यूबिक लेटिस पे बेस्ड हैं. ठीक है, तो चलिए अब इन्होंने क्या बोला है कि y atoms are at the corner of the cube. Now what is the corner of the cube? So corner of the cube मतलब y atom ये है. If this represents y atom, so ये कहाँ पे हैं? They are at the corners of the cube. So I am representing y atoms by circles. ठीक है, इनको हम हार्ट स्फीयर्स भी बना सकते हैं, मतलब इनको हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं like this. So either way you can show. This is for your clarity. तो जो मैं ये ड्रॉ कर रही हूँ ये आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए कि जो आपके एटम्स हैं वो कॉर्नर्स पे हैं या फेसेस पे हैं, कहाँ पे हैं या कहाँ है क्यूब के अंदर. सो आई विल बी ड्रॉइंग अप ऑल दीज एटम्स इन द फॉर्म ऑफ सर्कल्स या स्फीयर्स. तो हमारे y एटम्स कहाँ हैं? एट दी कॉर्नर, whereas x atoms are at the alternate faces. Now alternate face मतलब अगर आपका एक x एटम यहाँ पे है सो इस फेस पे नहीं होगा, फर्स्ट इस फेस पे. दैट मीन्स इफ इट इज नॉट हियर इट विल बी हियर ओनली. ठीक है, सो इफ इट इज देयर एट दिस फेस इट विल बी नॉट एट this face, right? And if it is not at this face it will be here, जो मैंने शो किया है. now मैं नीचे की तरफ जाती हूँ. so if x atom is at this face मतलब यहाँ पे है, जैसे मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पे, so that means ये obviously इस फेस पे नहीं होगा. तो अगर आप इस तरह से ड्रॉ करते हैं alternate फेस पे, if you try to show x atoms you will find कि सिर्फ दो ही केसेस बनते हैं, मतलब देयर आर ओनली इट इज ओनली पॉसिबल दैट ओनली 2 फेसेस विल हैव एटम्स इन देयर सेंटर. आप ये किसी भी फेस से कहीं से भी ट्राई कर सकते हैं. से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ ट्राई करती हूँ यहाँ से. सो इफ एक्स एटम इज एट दिस फेस, ये टॉप वाले फेस पे हमारा जो एक्स एटम है ये यहाँ पे है सपोज, then they say at alternate phase, so that means it will not be here, so it will be at the below वाला phase. ठीक है, यहाँ पे अगर ये यहाँ पे होगा मतलब at the bottom वाला phase क्यूब के here, so that means it will not be here. now if it is not here, again यहाँ पे है. अब अगर यहाँ पे है तो इसका ये बैक वाला फेस एडजेसेंट है,
तो वहां पे ये नहीं होगा. So in this way again we get only two faces with X atoms if X atoms are at the alternate face. तो मैं यहाँ पे एक यहाँ पे ड्रॉ कर लेती हूँ. So this is my X atom and एक मैं ड्रॉ कर लेती हूँ यहाँ पे. So there are only two cases, so two faces. So if this is my X atoms, these are my X atoms. I am changing the color for clarity क्योंकि I think ये blue color इतना visible नहीं होता है on the screen. So X atoms, right? So this represents X atoms. Okay, अब हमें क्या निकालना है? Number of atoms of each type, right? So let us start with the Y atoms. Y atoms कहाँ पे present है? Y atoms are at the corner. At the corner. Now, how many corners are there? There are 8 corners. ठीक है? So मतलब total 8 atoms होने चाहिए according to 8 corners. But if you know कि जो हमारा पूरा स्ट्रक्चर होता है वो बहुत सारे यूनिट सेल से बनता है, तो अकेला ये वाला यूनिट सेल तो है नहीं उस स्ट्रक्चर में, ऐसे बहुत सारे यूनिट सेल्स होंगे जो इससे अटैच्ड होंगे. सो आप ध्यान से देखिए, जो कॉर्नर वाला आपका यूनिट एटम है, एटम एट द कॉर्नर, ये वाला एटम और इस यूनिट सेल के अलावा it will be present in 7 other unit cell. मतलब an atom at the corner is shared by 7 other atoms, right? So that means इस पर्टिकुलर एटम का, यानी कि कॉर्नर वाले एटम का 1/8 कंट्रीब्यूशन हर एक यूनिट सेल में है. अगर टोटल 8 यूनिट सेल्स में है, इट इज शेयर्ड बाय 8 यूनिट सेल्स. सो दैट मींस ये एटम का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल कितना है? 1/8. सो एज एटम at the corner is shared by 8 unit cells, therefore इस contribution, इसको हम इसका contribution बोलते हैं पर यूनिट सेल. contribution per unit cell will be equal to 1/8. अगर इसका कंट्रीब्यूशन एक एटम का 1/8 है एंड देयर आर टोटल 8 एटम्स, 8 कॉर्नर्स, तो मतलब 8 एटम्स. देयरफॉर नंबर ऑफ Y एटम्स कितने हो गए पर यूनिट सेल? पर यूनिट सेल will be equal to 8 atoms और contribution 1/8. So this is equal to 1. So basically what I'm trying to say कि ये जो corners पे atoms हैं, इन सब का 1/8, ये corner पे मैंने मिस कर दिया है. So इन सब का 1/8 पार्ट जो है वो इस पर्टिकुलर यूनिट सेल में है. So in total 8 atoms हैं. So 8 into 1/8, तो it makes up 1 atom per unit cell. मतलब सारा 1/8 पार्ट अगर 8 times हम करें तो that becomes 1. So that means there is one Y atom per unit cell. Now talking about the atom at the alternate phases. Now if X atoms are at the alternate phase, पहली तो बात ये है कि an atom, I am talking about X atoms now. Now X atoms हैं at alternate phases, right? Now if X atoms are at alternate phase, so first of all you tell me that an atom at the face is shared by how many unit cells? मतलब जो ये एटम यहाँ पे है इस पर्टिकुलर फेस पे है, इसको कितने यूनिट सेल शेयर करते हैं? इट विल बी शेयर्ड बाय 2 यूनिट सेल्स. हाउ? इसका हाफ जो है वो इस यूनिट सेल में होगा, इसका अपर हाफ जो होगा वो इसके ऊपर वाले यूनिट सेल में होगा. इट विल बी इन द यूनिट सेल अबव इट. सिमिलरली जो ये नीचे वाले फेस पे हमारा एटम है, इसका हाफ पार्ट इस यूनिट सेल में होगा, इसका हाफ पार्ट विल बी शेयर्ड बाय
another atom below this, जो कि कहाँ होगा, shared by another unit cell, जो कि कहाँ होगा, below this unit cell. So that means similarly वैसे हर फेस पे यही होता है, at all the faces it's the same thing. मतलब हर एक atom at the face is shared by 2 unit cells. ठीक है. So that means an atom at the face is shared by how many unit cells? By 2 unit cells. Now they say that they are present at alternate phases. ठीक है. So पहले तो alternate phase पे हैं, so that means only 2 atoms हैं, because there is only two possibilities. So 2 phases ही possible हो सकते हैं जहां पे atoms at alternate phase present हो. Now if an atom at the face is shared by 2 unit cells, so therefore contribution कितना हुआ per unit cell? Contribution of this atom, यानी कि ये आधा एक यूनिट सेल में है एंड आधा दूसरे यूनिट सेल में है, सो इसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल हो गया 1/2. नाउ देयर आर 2 एटम्स, कंट्रीब्यूशन 1/2, सो नंबर ऑफ x एटम्स पर यूनिट सेल is equal to 2 into 1/2. This is equal to 1. So that means हमारे y एटम्स आ गए, कितने आए हमारे y एटम्स? y एटम्स आ गए हमारे 1 और हमारे x एटम्स आ गए 1. So now according to them y एटम्स कॉर्नर पे थे ना, तो जनरली जो कॉर्नर ऑक्यूपाई करते हैं दे आर एनाइंस, और एनाइंस को हम अपने फॉर्मूला में बाद में लिखते हैं कैटाइंस को पहले. सो दैट मींस x हमारा कैटाइन है और y हमारा एनाइन है. x कितना है 1, y कितना है 1, so ratio is 1:1. So formula of the compound becomes xy. So in this way we derive the formula of the compound by calculating number of atoms per unit cell. So let's do the next numerical. Calculate the number of atoms in a cubic based unit cell having 1 atom on each corner and 2 atoms on each body diagonal. Now 1 atom on each corner, मतलब again ये corner पे एक एटम, हमें इसमें निकालने हैं नंबर ऑफ एटम्स, मतलब टोटल नंबर ऑफ एटम्स. इसमें हमें फॉर्मूला नहीं निकालना. 1 एटम कॉर्नर पे यहाँ पे, सो यहाँ पे सभी कॉर्नर्स पे एटम ड्रॉ करने के बाद, सो दैट मीन्स ये हमारे हो गए 8 एटम्स ऑन ऑल द 8 कॉर्नर्स, right? And 2 atoms on each body diagonal. So let us draw body diagonal. So body diagonal कैसे draw होगा? एक body diagonal होगा यहां से यहां, one body diagonal will be here to here, एक body diagonal होगा हमारा यहां से यहां, and another will be, actually ये सबके सब एक ही उसमें से पास होने चाहिए. So just a second, this will be here और हमारा ये हो गया यहाँ, and one more, yes this will be here. So दो मैंने perfect नहीं बना पा रही हूँ because इस screen पे you cannot draw straight line, हाथ से नहीं बन पाती है. So 1 second, I'll try to draw as clear as possible. So we are left with what? We are left with 2 diagonals ना. So हमारे हो गए ये, एक हमारा body diagonal होगा यहाँ पे here, and one will be like इस corner से इस corner पे. So there are 4 body diagonals. ठीक है. How many body diagonals? There are 4 body diagonals on each body diagonal. So there are 4 body diagonals. ठीक है. बॉडी डायगोनल्स 4 होते हैं, पहले आपको ये पता होना चाहिए. नाउ देयर आर
there is one atom on each body diagonal. No, there are two atoms on each body diagonal. तो हम body diagonal पे atoms draw करते हैं. So suppose एक यहाँ पे है, ठीक है, तो एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे है, तो एक यहाँ पे होगा. ऐसे आइडिया से आई एम ड्रॉइंग. सो लाइक दिस. सो 2 atoms on each body diagonal. So in total मतलब 8 atoms हो गए. राइट. नाउ हमें निकालने टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल. सो नाउ एटम्स एट दी कॉर्नर. लेट अस टॉक अबाउट एटम्स एट दी कॉर्नर. सो दिस इज द सेम जैसे हमने प्रीवियस न्यूमेरिकल में किया है. सो एटम्स एट दी कॉर्नर आर 8. कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल यानी कि शेयरिंग पर यूनिट सेल. अगर 8 यूनिट सेल शेयर कर रहे हैं, सो 1/8 पार्ट इज प्रेजेंट इन 1 यूनिट सेल. देयरफॉर नंबर ऑफ एटम्स per unit cell becomes 8 into 1/8, that is equal to 1. Now talking about body diagonals. Atoms at the body diagonal. Now there are 4 body diagonals. They say there are 2 atoms on each body diagonal. That means 2 atoms each, मतलब टोटल कितने हो गए? 8 atoms. So 4 into 2, 8 atoms. Right? Now an atom inside the body. Body का center हो, body diagonal हो. An atom inside the body is shared by only 1 unit cell, जो हमें यहाँ पे दिख रहा है. मतलब ये अंदर है बॉडी के, तो ऑब्वियसली इसके आसपास के जो यूनिट सेल्स हैं वो इसको शेयर नहीं करेंगे. सो ये जो 8 एटम्स है इनको सिर्फ यही यूनिट सेल शेयर करता है. सो देयरफॉर कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स at the body diagonal will be 1. मतलब इसको एक ही यूनिट सेल शेयर कर रहा है. नाउ एटम्स टोटल कितने हैं? 8. शेयरिंग कितनी है? आई मीन कंट्रीब्यूशन कितना है? 1. देयरफॉर नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल विल बी इक्वल टू 1 into 8, that is 8. तो 8 आ गए हमारे कहां से? बॉडी डायगोनल से. और हमारा 1 आ गया एट दी कॉर्नर से. मतलब ये जो कॉर्नर वाले हैं इनका कंट्रीब्यूशन सबका मिला के 1 बन गया. ये एक ही एटम बनता है. वाइल बॉडी डायगोनल पे जितने एटम्स है दे आर 8. सो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए? 1 plus 8, 9. सो टोटल नंबर ऑफ एटम्स is equal to 1 plus 8, 9. कॉर्नर और बॉडी डायगोनल का कंट्रीब्यूशन मिला के इट मेक्स अप 9 एटम्स इन दिस पर्टिकुलर यूनिट सेल. A compound is made up of elements A and B. It crystallizes in the cubic structure. Atoms A are present on the corners as well as face centers, whereas atoms B are present on the edge centers as well as body centers. What is the formula of the compound? तो अभी हम इसमें क्या करते हैं, अगेन ड्रॉ कर लेते हैं इस डायग्राम में. सो एटम्स ए आर प्रेजेंट एट दी कॉर्नर्स. सो कॉर्नर्स हो गए हमारे ये. सो ये हमारे ए एटम्स हैं, दे आर एट दी कॉर्नर्स. एंड वेयर एल्स एज वेल एज दी फेस सेंटर्स, यानी कि सभी फेसेस के सेंटर में है, यहाँ, यहाँ एंड यहाँ. Whereas atom B are present on the edge centers as well as body center. तो मतलब यहाँ पे एज सेंटर, ये हो गया हमारा एज और इसका सेंटर, एज सेंटर, राइट. सो ऑन ऑल द एजेस एंड एक बॉडी में है, सेंटर में है. ठीक है. सो हमारा जो ये सर्कल है दिस इज रिप्रेजेंटिंग बी एंड रेड कलर सर्कल इज रिप्रेजेंटिंग A atoms. So red color circle is representing A atoms. अभी हमें क्या निकालना है? We have to calculate
the formula of the compound. Now talking about A atoms. So A atoms are कहाँ पे? At the corners and at the faces, face centers and face centers. तो हम दोनों का कंट्रीब्यूशन, दोनों के जो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल हैं ए के दोनों टाइप्स के, कॉर्नर वाले और फेस सेंटर वाले, उनको ऐड कर लेते हैं. लाइकवाइज बी के निकालेंगे सभी एटम्स पर यूनिट सेल, एंड इन दैट वे वी विल कैलकुलेट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड. नाउ हाउ? सो ए एटम्स आर एट द कॉर्नर. सो कॉर्नर है मतलब टोटल एटम्स तो हो जाएंगे 8, राइट. कंट्रीब्यूशन विल बी, कॉर्नर पे क्या होता है कंट्रीब्यूशन? 1/8. देयरफॉर नंबर ऑफ एटम्स, ये वाले पर यूनिट सेल मतलब कॉर्नर वाले, अगेन दिस इज इक्वल टू 8 इंटू 1/8, दैट इज इक्वल टू 1. नाउ और कहाँ है ये? फेस सेंटर पे. दिस इज, वी आर टॉकिंग अबाउट ए एटम्स. ओके, सो फेस सेंटर्स पे, फेस सेंटर्स का कंट्रीब्यूशन, फेस सेंटर कितने होते हैं? देयर आर 6 फेसेस, सो दैट मींस 6 एटम्स, राइट. बट शेयरिंग होती है, हर एक फेस के सेंटर पे जो एटम होता है दैट इज शेयर्ड बाय 2 यूनिट सेल. सो उसका कंट्रीब्यूशन हर एक यूनिट सेल में कितना होता है? हाफ. सो कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू हाफ, राइट. सो देयरफॉर नंबर ऑफ एटम्स एट द फेस जो होंगे पर यूनिट सेल विल बी इक्वल टू 6 इंटू 1/2 इक्वल टू 3. तो 1 हो गया और 3 हो गया, मतलब ए एटम्स कॉर्नर वाले 1 हैं और फेस वाले 3 हैं. सो टोटल नंबर ऑफ ए एटम्स कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ ए एटम्स becomes it becomes 4. 1 plus 3, 4, right. Now talking about B atoms. So they said that B atoms are present on the edge centers as well as body centers. So B atoms हमारे कहाँ हैं? edge center पे. B atoms at the edge center and body center, राइट. सो एज सेंटर का क्या कंट्रीब्यूशन होता है? पहले तो बात करिए एज होते कितने हैं. एज सेंटर्स की बात करते हैं, एज सेंटर वालों के लिए. सो देयर आर 12 एटम्स, बिकॉज देयर आर 12 एजेस, सो देयर आर 12 एटम्स. आप काउंट कर लीजिए, देयर आर 12 एजेस इन अ क्यूब, ठीक है. और एक एटम एट द एज इज शेयर्ड बाय हाउ मेनी यूनिट सेल? जो एटम यहाँ एज पे प्रेजेंट है, ये एज वाला जो है हमारा, इसको कितने यूनिट सेल शेयर करते हैं? मतलब इसको कितने यूनिट सेल शेयर करते हैं? इसको 4 यूनिट सेल शेयर करते हैं. हाउ? एक ये वाला शेयर कर रहा है, ठीक है, जिस जो आपको दिख रहा है. एक इसके सामने होगा, राइट, वो शेयर करेगा. इधर होगा वो शेयर करेगा, और एक साइड पे होगा जो वो शेयर करेगा. सो बेसिकली दिस एटम जो ये एज पे है, कोई भी एटम जो एज पे होता है, दिस इज शेयर्ड बाय 4 यूनिट सेल. हाउ कम? अगेन आई एम टेलिंग, जैसे सपोज ये यहाँ पे है, सो एक तो आपको दिख रहा है ये यूनिट सेल शेयर कर रहा है, एक इसके एडजेसेंट होगा, ठीक है, वो करेगा. अभी इसके अलावा इस पर्टिकुलर यूनिट सेल के जो ऑपोजिट सामने की तरफ होंगे, फ्रंट पे जो होंगे, फ्रंट साइड पे जो यूनिट सेल्स होंगे, जो एग्जैक्टली इस यूनिट सेल के सामने एक लाई करेगा और जो इसके एडजेसेंट पे लाई करेगा, उसके सामने जो लाई करेगा वो 2 यूनिट सेल्स, और 2 यहाँ पे जो होंगे, यहाँ और यहाँ. एक आपको दिख रहा है, एक इसका एडजेसेंट, एडजेसेंट वाले का ऑपोजिट, इसके वाले का ऑपोजिट, इसके वाले का ऑपोजिट. सो बेसिकली एन एटम एट द एज इज शेयर्ड बाय 4 यूनिट सेल्स. सो एन एटम at the edge is shared by 4 unit cells.
सो दैट मीन्स देयरफॉर इसका कंट्रीब्यूशन, मतलब इसका कितना पार्ट एक पर्टिकुलर यूनिट सेल में है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल विल बी इक्वल टू 1/4। टोटल एटम्स कितने हैं, 12 हर एक एज पे। देयरफॉर नंबर ऑफ एटम्स per unit cell will be equal to 12 into 1/4 that is equal to 3। अब और कहाँ है, बॉडी सेंटर पे। सो टॉकिंग अबाउट बॉडी सेंटर, सो बॉडी के सेंटर में देयर विल बी ओनली वन एटम। अगर वो डायगोनल, ये नहीं बोला कि सारे बॉडी डायगोनल पे है, तो दैट मीन्स बॉडी के सेंटर में है, तो दैट मीन्स देयर इज ओनली वन एटम, एंड एन एटम एट द बॉडी सेंटर इज शेयर्ड बाय ओनली वन यूनिट सेल। मतलब जिस पर्टिकुलर यूनिट सेल में वो प्रेजेंट है, जिसमें हमें अभी दिख रहा है यहाँ पे, सो इसको सिर्फ यही शेयर करता है और कोई नहीं। दैट मीन्स contribution of this atom, contribution of this atom is 1, क्योंकि ये शेयर किया जाता है वन यूनिट सेल से। सो नंबर ऑफ एटम हाउ मेनी हो गया पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम्स, ये कौन से टाइप के थे हमारे, हाँ बी टाइप के निकाल रहे हैं। सो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इज इक्वल टू 3 प्लस, सॉरी नॉट 3, अभी यहाँ पे पहले 1 into 1 is equal to 1। सो टोटल नंबर ऑफ बी एटम्स कितने हो गए, ये 3 और ये 1 4। सो टोटल नंबर ऑफ बी एटम्स पर यूनिट सेल इज इक्वल टू 4। ना हमें क्या निकालना है, इनका फॉर्मूला। ए एटम्स आर एट द कॉर्नर्स, जनरली कॉर्नर्स पे एनाइंस होते हैं। सो एनाइन को हम कहाँ लिखते हैं, बाद में, और कैटाइन को हम कहाँ लिखते हैं, पहले लिखते हैं। ठीक है, इट्स नॉट नेसेसरी कि हमेशा ऐसे हो, बट जनरली एनाइंस आर बिगर इन साइज देन कैटाइन, नॉट ऑलवेज बट जनरली। सो एनाइंस को हम अपने फॉर्मूला में बाद में लिखते हैं, कैटाइन को पहले, इसीलिए मैं बी ए लिख रही हूँ। सो 4 टाइप के ये हैं, 4 ये हैं, नॉट 4 टाइप के, 4 एटम्स बी है के हैं पर यूनिट सेल, 4 एटम्स ए के हैं पर यूनिट सेल। सो द रेशियो इज 1:1। सो फॉर्मूला इज बी ए, बी ए। So formula of the compound is Ba. Okay. Next question. If 3 elements P, Q and R crystallize in a cubic solid lattice with P atoms at the corner. So हमारे P atoms कहाँ हैं? P atoms are at the corner. So P atoms हमारे यहाँ पे हैं, corner पे हैं. Okay. And Q atoms at the cube center. तो जो हमारा Q एटम है वो हमारा है क्यूब सेंटर में, मतलब यहाँ पे। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज हमारा R, यहाँ पे क्लियर कुछ मिसिंग है, R एट दी, R यहाँ पे लिख लीजिए क्यूब सेंटर, एंड R एटम्स एट दी फेसेस ऑफ दी क्यूब। सो मतलब फेस सेंटर में है हमारे आर एटम्स। तो हमारे आर एटम्स कहाँ है, यहाँ पे फेस सेंटर में। सो हर एक फेस के सेंटर में एक एटम बनाइए, मतलब मैंने आर ही ड्रॉ कर दिया यहाँ पे। सो ये वाला फेस एंड बैक वाला फेस। ठीक है, सो व्हाट इज दी फॉर्मूला ऑफ दी कंपाउंड। सो पी कहाँ है हमारा, कॉर्नर्स पे। अगेन सेम थिंग अबाउट द कॉर्नर्स, 8 atoms in total 8 atoms in total 8 because there are 8 corners. Contribution 1/8, contribution 1/8. So number of P atoms per unit cell is equal to 8 into 1/8, that is equal to 1. ठीक है, नाउ वेयर आर क्यू एटम्स, क्यू एट दी सेंटर, क्यू एट दी सेंटर। सो एटम कितने हो गए, एक ही एटम है, और इसको कौन शेयर करता है, यही यूनिट सेल शेयर करता है। सो दैट मीन्स इसका कॉन्ट्रीब्यूशन इज 1,
So number of Q atoms per unit cell is equal to 1 into 1, that is equal to 1. Now talking about R atoms, ये कहाँ पे हैं? फेस पे, फेस सेंटर्स पे, R फेस सेंटर्स पे. So there are 8 faces. So number of atoms हो जाएंगे हमारे 6, राइट. कंट्रीब्यूशन मतलब जो एटम फेस के सेंटर पे होता है, that is shared by 2 unit cells, 1/2. So number of R atoms per unit cell is equal to 6 into 1/2, that is equal to 3. So P is to Q is to R की रेशो कितनी आ गई? 1:1:3, राइट. P atoms 1 आए हैं, Q 1 आए हैं, R 3. So formula of the compound is PQR3. दो जो एटम्स कॉर्नर पे होते हैं जनरली एनाइंस होते हैं, जो भी हमारे एनाइंस फॉर्मूला में होते हैं वो ऑक्यूपाई करते हैं, तो इसलिए हम एनाइंस को बाद में लिखते हैं फॉर्मूला में. बट जैसे मैंने यहाँ पे पहले लिख दिया PQR3, P कॉर्नर पे थे, तो एक्चुअली इट डजंट मैटर ओवर हियर. यहाँ पे अगर आप इसको पहले लिख देंगे, ये जैसे मैंने पिछले फॉर्मूला में किया, आई रोट इट BA. सो अगर आप AB भी लिख देंगे तो चलता है, आई मीन इट गोज वेल, गलत नहीं होगा. इसीलिए हर जगह जरूरी नहीं है कि मैं उनको बाद में लिखूं. लाइक अगर कॉर्नर पे है तो मैं उसको फॉर्मूला में बाद में लिखूं. मैंने यहाँ पे पहले लिखा है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है. बट इट्स अ कन्वेंशन टू राइट द एनाइंस. बट यहाँ पे हमें श्योरिटी नहीं है, 3 तरह के एटम्स है, इसमें कौन से एनायन है. एंड इट इज नॉट नेसेसरी दैट एनाइंस आर ऑलवेज द वंस दैट ऑक्यूपाई द कॉर्नर्स. सो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे. सो हियर आई एम नॉट राइटिंग देम एट दी एंड. मैंने PQR3 फॉर्मूला बनाया है, विच इज ऑल्सो करेक्ट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटेशियम क्रिस्टलाइजेस इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस. नाउ व्हाट इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस इज जिसमें आपके एटम्स जो होते हैं वो कॉर्नर्स पे होते हैं क्यूब के, और बॉडी के सेंटर में होते हैं क्यूब के, क्यूब की बॉडी के सेंटर में. दैट इज नोन एज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस. सो इसमें क्या करना है? कैलकुलेट द अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ यूनिट सेल्स in 2 gram of potassium. Atomic mass of potassium is 39 U. So अगर आप ये निकाल लें कि इस बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में, इस बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में कितने एटम्स हैं पर यूनिट सेल, तो आप इसके मास से आप निकाल सकते हैं कि उसके 2 ग्राम में कितने एटम्स होंगे, कितने यूनिट सेल्स होंगे. I'll explain you step by step. So सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम निकालेंगे number of atoms per unit cell in this body centered cubic lattice. So what did they tell us? इन्होंने बोला है कि potassium atoms are occupying the, what are they occupying? They are occupying the corners. Body centered lattice है, so corners as well as the center of the body, right? So हम निकालेंगे नंबर ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, वी विल कैलकुलेट नंबर ऑफ के एटम्स, मतलब पोटेशियम एटम्स पर यूनिट सेल, एंड दैट इंफॉर्मेशन विल बी यूज्ड टू कैलकुलेट नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इन 2 ग्राम ऑफ पोटेशियम. सो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा? टू कैलकुलेट नंबर ऑफ पोटेशियम एटम्स पर यूनिट सेल. देन अगेन सेम चीज, कॉर्नर्स पे है, सो कॉर्नर्स पे 8 एटम्स हो जाते हैं, राइट. कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? 1/8, राइट. सो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल becomes number of atom per unit cell is equal to 8 into 1/8, 1. ये तो हो गया कॉर्नर वाले की बात. Now at the body center, because it is a body centered cubic lattice. So body centered 1 atom, contribution 1 per unit cell, right. So number of atoms per unit cell will be
only talking about body center, 1 into 1 that is equal to 1. So in total कितने हो गए atoms per unit cell? 1 plus 1 2. Therefore total number of atoms per unit cell is equal to 1 plus 1 that is equal to 2. अब हमने ये निकाल लिया कि 2 एटम्स मेकअप 1 यूनिट सेल, है ना, मतलब एक यूनिट सेल में 2 एटम्स है, मतलब 2 एटम्स contribute to 1 unit cell, they make up 1 unit cell. So if I calculate कि 2 ग्राम में कितने एटम्स होते हैं पोटाशियम के, I can calculate 2 ग्राम of potassium में कितने यूनिट सेल्स होंगे, right? So here I come to know that 2 atoms for 1 unit cell, right? Per unit cell, यही भी निकाला है हमने. So now if I calculate how many atoms are there in 2 gram of potassium, I will calculate number of unit cells in 2 gram of potassium. So second step क्या रहेगा हमारा इसमें? Calculate number of atoms in 2 gram of potassium. So this is simple mole concept. If atomic mass of potassium is 39 U, तो मतलब उसका मोलर मास कितना होगा? 39 ग्राम. दैट विल बी इट्स मोलर मास. मतलब एक मोल का मास मतलब 6.02 into 10 raised to power 23 एटम्स का मास. So that means if 39 gram is the mass of या weight of how many atoms? Avogadro number of atoms. तो 2 ग्राम में कितने एटम्स होंगे? Then 2 gram is the mass of 6.02 into 10 raised to power 23 upon 39 into 2. This much number of atoms. So हमने कैलकुलेट कर लिया कि 2 ग्राम में कितने पोटाशियम एटम्स हैं, राइट? सो सेकेंड स्टेप अकम्प्लिश. नाउ टॉकिंग अबाउट थर्ड स्टेप. अब हमें निकालना है कि इतने एटम्स से कितने यूनिट सेल बनते हैं बेसिकली. सो इतने एटम्स, दिस इज व्हाट दे आस्क ना, दैट approximate number of unit cells in 2 gram of potassium. If this is the number of atoms in 2 gram of potassium, so we can calculate number of unit cells with this much number of atoms, potassium atoms. So third step is to calculate number of unit cells in कितने? 6.02 into 10 raised to power 23 upon 39 into 2 potassium atoms. not in exactly, यहाँ पे हम in word नहीं यूज करेंगे, but number of unit cells equal to इतने potassium atoms. So basically if there are 2 atoms for how many unit cell? For 1 unit cell. So for 6.0 into 10 raised to power इतने एटम्स कितने यूनिट सेल हो जाएंगे? 6.02 into 10 raised to power 23 upon 39 into 2 into 1 by 2. So ये कैंसिल आउट हो गया एंड अपॉन कैलकुलेशन ये वैल्यू आएगी 1.54 into 10 raised to power 22 unit cells, right? So हमने 2 ग्राम के अंदर नंबर ऑफ एटम्स निकाल लिए. तो हमें पता चल गया कि अगर 2 एटम्स के लिए 1 यूनिट सेल है, so that means इतने एटम्स जो हैं they make up how many unit cells? That is equal to 1.54 into 10 raised to power 22 unit cells.
Let's take up next numerical. What is the number of atoms in a body centered cubic unit cell? This I am not going to solve because ये जो मैंने previous fifth question किया था अभी, उसका जो first step था, that was the number of atoms in a body centered cubic unit cell, which is equal to 2. So ये बिल्कुल exactly similar है, so you can do it yourself. So let's move to next one. A cubic solid is made up of two elements P and Q. Atoms Q are present at the corners of the cube and atoms P at the body center. What is the formula of the compound? अब ये भी similar है to the previous one, but the difference is यहाँ हमें formula निकालना है. मतलब हमें ये पता है, बताया हुआ है कि जो हमारे Q atoms हैं, they are at the corners. बात काफी कुछ similar है to the previous body center thing. मतलब वहां पे क्या था, एक पर्टिकुलर टाइप का पोटाशियम एटम था, यहाँ पे दो एटम्स हैं. सो वहां पे क्या था, सारे पोटाशियम एटम्स कॉर्नर पे थे और बॉडी सेंटर में भी पोटाशियम एटम था. यहाँ पे क्यू एटम्स आर एट द कॉर्नर एंड पी एटम एट द बॉडी सेंटर. सो फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड निकालना है हमें. ठीक है. सो टॉकिंग अबाउट क्यू एटम्स, सेम थिंग अगेन एंड अगेन. क्यू एटम्स कहाँ हैं, कॉर्नर पे. अब तक तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जब कोई एटम कॉर्नर पे होता है एंड ऑल द कॉर्नर्स ऑफ अ क्यूब, सो नंबर ऑफ एटम इन केस ऑफ कॉर्नर पर यूनिट सेल 1 आता है, बिकॉज एटम्स 8 होते हैं अकॉर्डिंग टू 8 कॉर्नर्स. कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 होता है, राइट. एंड बाय दिस नंबर ऑफ क्यू एटम्स पर यूनिट सेल आ गया, per unit cell becomes 8 into 1/8, that is equal to 1. Right. Now talking about atoms at the body, again body वाला भी वही हमने कई बार कर लिया. Body, ठीक है. P atoms at the body center. So only one atom is equal to 1. Contribution is equal to 1. So number of P atoms per unit cell will be equal to 1. So 1 into 1, this is equal to 1. So यहाँ पे अगर हम रेशियो निकालें P and Q की, that comes P atoms 1 है, Q atoms 1 है. So the formula becomes PQ. So this was a very simple numerical. अब तक आपको काफी समझ आ गया होगा about these kind of numericals. Okay, चलिए next one करते हैं. In a face-centered cubic arrangement of atoms A and B, A are present at the corners and B at the face center. अब हमारे जो A हैं, they are at the corners. A atoms are at the corners. Okay, so they are here, and B atoms at the face center. B atoms at the face center. So let us draw all the B atoms यहाँ पे and यहाँ पे, right. If atoms A are missing from 4 corners in each unit cell, so किसी भी 4 कॉर्नर से आप क्या कीजिए, यू रिमूव 4 एटम्स. इन्होंने बोला है ना कि इफ एटम्स ए आर मिसिंग फ्रॉम 4 कॉर्नर्स, यू कैन टेक अप एनी 4 कॉर्नर्स. तो आप ये दिस वन मैंने ऐसे रैंडमली 4 कॉर्नर से रिमूव कर दिए. तो दैट मीन्स ओनली 4 एटम्स आर लेफ्ट एट दी corner of the unit cell. So now you have to calculate the formula of the compound. Now A atoms कहाँ हैं? A atoms are at the corner, right? Corner पे. अब यहाँ पे क्या डिफरेंस हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास 4 हो गए. 1 2 3 4 A atoms, because 4 atoms are missing from 4 corners. So A atoms at the 4 corners. Now that means number of A atoms हमारे पास अभी कितने हैं? 4 in this unit cell. But contribution तो corner वाले का वही रहेगा. Contribution will be same 1/8.
चाहे वो 4 मिसिंग है, बट ये जो हर कोई ए एटम है, इट इज बीइंग शेयर्ड बाय 8 अदर, टोटल 8 यूनिट सेल्स, एक ये और 7 अदर यूनिट सेल्स. सो दैट मीन्स कॉन्ट्रीब्यूशन तो इसका 1/8 रहेगा. सो देयरफॉर नंबर ऑफ ए एटम्स per unit cell will be equal to 4 into 1/8, that is equal to 1/2. Now talking about B atoms. So जो हमारे B हैं वो तो फेस सेंटर्स में है, तो वो तो बहुत सिंपल है. B atoms फेस सेंटर्स पे हैं. So faces कितने होते हैं? 6. So number of B atoms will be equal to 6. एंड शेयरिंग कितनी होती है? मतलब एक एटम जो फेस के सेंटर पे होता है उसको कितने और यूनिट सेल शेयर करते हैं? इट इज शेयर्ड बाय 2 अदर यूनिट सेल्स. सो मतलब वो आधा एक यूनिट सेल में होता है और आधा दूसरे यूनिट सेल में होता है. मतलब बी का हाफ पोर्शन इस यूनिट सेल में है एंड बी का हाफ पोर्शन इसके एडजेसेंट यूनिट सेल में है. सो नंबर ऑफ बी एटम्स per unit cell will be equal to 6 into 1/2, that is equal to 3. तो हमारे पास A एटम्स आ गया 1/2, B एटम्स आ गया 3. सो ओके, सो A is to B की रेशियो निकालते हैं. ये है 1/2 और ये है 3. सो कन्वर्टेड इनटू सिंपल होल नंबर रेशियो, मल्टीप्लाई बाय 2, multiply by 2, so it becomes 1:6. So formula of the compound is AB6. So in this case formula is AB6. Okay, chaliye let's solve numerical number 9. An ionic compound is made up of P cations and Q anions. If P are present at the alternate corners, okay, alternate corners, पहले ड्रॉ ही कर लेते हैं हम अपने P एटम्स को. दे आर एट दी ऑल्टरनेट कॉर्नर, मतलब अगर मैं इस कॉर्नर से स्टार्ट करूं तो अगर एक P एटम यहाँ पे है तो यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे है तो यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे है तो यहाँ पे नहीं होगा, and then it will be here, and if it is here it will not be here, if it is here तो इसका alternate corner है, यहाँ पे नहीं होगा. so ये हो गए हमारे alternate corners पे. and Q is present on the body diagonal. अब हमें ये नहीं बोला कौन सा, so that means there one body diagonal, मतलब एक ही body diagonal पे है, तो कोई भी एक body diagonal ड्रॉ कर लीजिए यहाँ पे. so where is Q? Q is here on the body diagonal, right? now they say what is the formula of the ionic compound. now P is at the, P हमारा क्या है? cation है, and it is present at alternate corner. so as I told you, it is not necessary that cations anions ही corner occupy करें, generally ऐसा होता है. now you can see that P, these are cations and they are occupying alternate corners. ठीक है, वो alternate corners कितने हो जाएंगे? 4. how many alternate corners? so alternate corners की बात करूं, so therefore there will be how many P atoms? will be 4 P atoms. obviously alternate corner पे count करो, 1 1 2 3 4, right? now contribution at the corner exactly वही रहेगा 1/8. contribution corner वाले का कितना होता है? 1/8. so therefore number of P atoms per unit cell will be equal to 1/8 into 4, that is equal to 1/2. now where is Q? Q is at the body diagonal. so not at all body diagonal, at the body diagonal मतलब एक ही body diagonal. so atom कितने हो गए? ये number of Q atoms you can see it is 1 only, is equal to 1. contribution
जो बॉडी के सेंटर में होता है उसका कंट्रीब्यूशन क्या होता है 1. सो नंबर ऑफ Q atoms per unit cell is equal to 1 into 1, that is equal to 1. So फॉर्मूला कैसे आएगा, रेशो से, P is to Q की रेशो. P कितना आया था हमारा हाफ, ये आया था हमारा 1. सो इसको होल नंबर बनाने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2. So this becomes 1 is to 2. So formula of the compound will be PQ2. PQ2. Right? चलिए next one. A solid has a structure in which W atoms are located at the corners of a cubic lattice. W atoms at the corner. तो let us draw W atoms. W draw कर लेते हैं at the corners. Okay. O atoms at the center of the edges. O at the center of the edges. Here, here, here. यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ, यहाँ और यहाँ. And sodium atom at the center of the cube. सोडियम एटम कहाँ है हमारा, सेंटर ऑफ द क्यूब में, यानी कि यहाँ पे. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड. नाउ दिस कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ 3 एटम्स. ऐसे जनरली ऑक्साइड्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं मिक्स ऑक्साइड्स, मतलब जिनमें ऑक्सीजन के साथ 2 तरह के कैटायंस होते हैं. जनरली जो आपको ऑक्साइड्स पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं सिंपल ऑक्साइड्स. फॉर एग्जांपल Na2O, राइट, K2O, 1 cation and other oxygen as an anion, right? But ये जो oxides हम यहाँ पे mention किया हुआ है, these are mixed oxides जिसमें W and sodium 2 तरह के कोई cation है and oxygen is an anion. तो जब हम फॉर्मूला लिखेंगे तो हम ऑक्सीजन को लास्ट में लिखेंगे एंड सोडियम और W को पहले लिखेंगे हम इस केस में, ठीक है. एंड दीज मिक्स ऑक्साइड्स यू विल स्टडी मोर इन दिस चैप्टर सॉलिड स्टेट. इसकी थ्योरी में आप पढ़ने वाले हैं what are mixed oxides. So let us get back to the numerical, जो कि क्या कह रहा है, that W atoms are at the corners. अभी again वही चीज corner पे है, W atoms corner, right? So atoms 8, right? Contribution 1/8, right? And so therefore number of W atoms per unit cell will be equal to 8 into 1/8, that is equal to 1. तो ये तो हमारे आगे W atoms. Now talking about O atoms, मतलब ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है. तो ऐसे इन्होंने कहा नहीं है ऑक्सीजन एटम्स, बट O एटम्स को मैं ऑक्सीजन एटम्स ही ले रही हूँ यहाँ पे. So O atoms center of the edge, center of the edge. Now how many edges are there? 12. So atoms कितने हो जाएंगे, 12. Contribution मतलब atom at the edge is shared by how many unit cells? 4. So 1/4. So number of O atoms per unit cell will be equal to 12 into 1/4, that is equal to 3. Coming to sodium, which is in the center of the cube. So sodium atom at the center, यानी कि body center, right? So atom कितना हो गए ये टोटल 1. कंट्रीब्यूशन इसका मतलब इसको सिर्फ एक ही यूनिट सेल शेयर करता है. Therefore number of sodium atoms per unit cell is equal to 1 into 1, that is equal to 1. So फॉर्मूला के लिए सोडियम is to W is to O की रेशियो निकालिए. So सोडियम आए हमारे 1, W एटम्स हमारे आए हैं 1 एंड ऑक्सीजन आए हैं हमारे
वन, कितने आए थे ऑक्सीजन एटम्स? 3. So this was oxygen atoms 3. So oxygen atoms 3. Formula of the compound becomes NaWO3. So this is the formula of the compound. Moving on to the next numerical. In a face-centered cubic lattice, atom A occupies the corner position and atom B occupies the face center position. Okay, पहले बना लेते हैं जो उन्होंने बोला है. Atom A occupy the corner position. So atom A हमारे corner पे हैं. Atom A occupy the corner position. Okay, and B atom occupies the face center position. So B atom at the face center. This face and front face. If one atom of B is missing from any of the face center point, so किसी भी face center में से एक B atom हटा देते हैं. इन्होंने कहा है there is one B atom missing. What is the formula of the compound? Very simple. Not talking about A atoms. Talking about A atoms. A atoms corner पे हैं. तो अब आपको समझ आ गया होगा कि नंबर ऑफ ए एटम्स कितने होंगे पर यूनिट सेल? 1. 8 इंटू 1/8. सो मैं दोबारा नहीं कर रही हूँ सॉल्व ये चीज. सो नंबर ऑफ ए एटम्स एट द कॉर्नर. सो एट द कॉर्नर. सो नंबर ऑफ ए एटम्स पर यूनिट सेल इज इक्वल टू 1. Now talking about B atoms, ये है हमारे फेस सेंटर्स पे. कहाँ है? फेस सेंटर्स पे. लेकिन इफ यू सी वन ऑफ देम इज मिसिंग फ्रॉम वन ऑफ द फेस. सो इसका मतलब टोटल कितने हो गए? 5 एटम्स, बिकॉज वन इज मिसिंग आउट ऑफ 6. सो टोटल 5 एटम्स हो गए. नाउ कॉन्ट्रीब्यूशन एट द फेस. तो कॉन्ट्रीब्यूशन तो डेफिनेटली 1 बाय कितना रहेगा? Contribution will definitely will be 1/2, क्योंकि चाहे बी एटम यहाँ से मिसिंग है, बट जो बाकी बी एटम्स प्रेजेंट है इन सबका जो कंट्रीब्यूशन है या जो बी एटम्स की शेयरिंग है वो तो 1/2 ही है ना. मतलब हाफ इस यूनिट सेल में और हाफ अनदर यूनिट सेल में. सो दिस इज ऑलवेज देयर फॉर ऑल द एटम्स एट द फेस सेंटर्स. सो कंट्रीब्यूशन विल बी 1/2. सो देयरफॉर नंबर ऑफ B atoms per unit cell will be equal to 5 into 1/2, that is equal to 5/2. So formula के लिए A is to B की ratio 1 is to 5/2. So to make it a simple whole number ratio, multiply by 2. So ये बन जाएगा 2:5. हमारा जो A is to B है. So formula becomes A2B5. Okay. चलिए. So this was quite simple. Next one. A solid AB having NaCl structure. A atoms occupy the corners of the cubic unit cell. Okay. NaCl टाइप स्ट्रक्चर. अब पहले आपको पता होना चाहिए NaCl टाइप स्ट्रक्चर होता क्या है. देखिए जो NaCl स्ट्रक्चर होता है दैट इज लाइक दिस, कि जो हमारे क्लोराइड आयंस होते हैं दे ऑक्यूपाई कॉर्नर्स, दे आर एट दी कॉर्नर्स एंड फेस सेंटर्स. फेस सेंटर्स पे होते हैं. तो मतलब जो कॉर्नर पे हैं एटम्स, जो भी इन केस दिस केस क्लोराइड आयंस, दे आर एट द कॉर्नर्स एंड फेस सेंटर. एंड टॉकिंग अबाउट सोडियम आयंस, सो फॉर NaCl स्ट्रक्चर सोडियम आयंस आर एट द एज सेंटर्स एंड एट द बॉडी सेंटर, मतलब क्यूब की बॉडी में होता है. सो दिस इज NaCl स्ट्रक्चर. ठीक है. अब दे से solid AB having NaCl structure, A atoms occupy the
कॉर्नर, मतलब अगर ए एटम्स कॉर्नर ऑक्यूपाई कर रहे हैं, यानी कि ये वाला कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर, ऑल द कॉर्नर्स अकॉर्डिंग टू देम, ओके, कॉर्नर्स पे हैं, सो ऑब्वियसली अगर इसका सिमिलर स्ट्रक्चर है NaCl, सो जो हमारे ए एटम्स है वो और कहाँ होंगे, दे विल बी एट दी फेस सेंटर्स ऑल्सो, ओके। जैसे हमारे क्लोराइड आयंस NaCl में कॉर्नर्स एंड फेस पे होते हैं, तो हमारे ए जो एटम्स हैं ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, सारे के सारे, आई थिंक मैंने कोई फेस मिस किया है, यस दिस फेस, यहाँ पे इस फेस के सेंटर में होगा, सो यहाँ पे होंगे। एंड जो बी एटम्स हैं, यानी कि जो सोडियम आयन की जगह ले रहे हैं, दे विल बी एट दी एच सेंटर्स, मतलब यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, हियर, 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 एंड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, यानी कि यहाँ पे बॉडी सेंटर में, ठीक है। अब दे से इफ ऑल फेस सेंटर्ड एटम्स along one of the axes are removed, then what will be the resultant stoichiometry of the solid? तो अगर हम किसी भी एक एक्सिस के अलोंग सारे के सारे फेस सेंटर के जो एटम्स हैं उनको रिमूव कर देते हैं, व्हाट विल बी दी स्टोइशियोमेट्री ऑफ द कंपाउंड। सो इसको थोड़ा और क्लैरिटी के लिए व्हाट आई एम डूइंग, मैं सारे एटम्स रिमूव करके मैं सिर्फ पहले फेस पे दिखा रही हूँ, सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो इस पर्टिकुलर पिक्चर में, डायग्राम में। सो व्हाट आई एम डूइंग, आई विल बी जस्ट ड्रॉइंग ए एटम्स एट दी फेस सेंटर्स, तो ये बताने के लिए कि कैसे हम दो एक एक्सिस से हम रिमूव करते हैं ए एटम्स को। सो कहाँ है, इस फेस सेंटर पे है आपका ए एटम, कहाँ है, इट इज एट दिस फेस सेंटर, फेस सेंटर, फेस सेंटर, this center, this face and this face. Now they say if what they say, one, if all face centered atoms along one axis, अब कोई भी एक्सिस ले लीजिए, if you take this axis, x axis, ठीक है, तो we have three axes, no, x, y and z, right? So इसको मैं अगर x axis मान लेती हूँ, this is one axis, so यहाँ से अगर मैं दो एटम्स रिमूव कर देती हूँ, तो इस एक्सिस के अलोंग कौन से एटम्स दिख रहे हैं आपको, कौन से फेस पे एटम्स दिख रहे हैं आपको, ये वाला और ये वाला, ठीक है। सो अलोंग दिस फेस, मतलब इस फेस और इस फेस, मतलब इस एक्सिस के अलोंग अगर मैं एटम्स रिमूव कर देती हूँ, सो आई एम, सो दैट मीन्स आई एम व्हाट आई एम डूइंग, आई एम रिमूविंग this atom and I am removing this face center का atom, बिकॉज दे आर सेइंग किसी भी एक एक्सिस के अलोंग रिमूव कर दो, तो मैं एक्स एक्सिस के अलोंग, इस एक्सिस के अलोंग रिमूव कर रही हूं, सो आई एम लेफ्ट विथ ओनली 4 ए एटम्स एट द फेसेस, राइट। सो अब अगेन मैं इसको वापस ड्रॉ कर लेती हूँ, जो मेरा ओरिजिनल स्ट्रक्चर था, जिसमें अब मैं सिर्फ ये 4 एटम्स दिखाऊंगी फेस पे, जो मैंने रिमूव किए हैं मैं वो नहीं दिखाऊंगी। सो ए और कहाँ थे, कॉर्नर्स पे थे, सारे कॉर्नर्स पे तो एज सच हैं, they are all present at the corners, right? and face में अब 4 ही रह गए हैं। and where were b atoms, b atoms were at the H center according to NaCl structure की हम जो बात करते हैं, at the H center, edge, this edge, this edge, this edge, this edge and this edge, और कहाँ आता है, एक बॉडी के सेंटर में होता है। now we have to calculate the formula of the stoichiometry of the solid. Now it's very simple. अब तो आपको number of atoms of each type per unit cell निकालने हैं। So let us talk about A atoms. Now A atoms जो corner पे हैं, corner plus face center पे, right? Now corner की बात करें तो again corner पे there are 8 A atoms, right? Contribution 1/8, contribution is 1/8, therefore number of A atoms कितने हो गए यहाँ पे कॉर्नर वाले, 8 into 1/8 that is equal to 1. Now talking about face center, we are left with only 4 atoms out of 6 by removing atoms along one axis. So 4 atoms, contribution at the face
स्पेस सेंटर का कितना होता है 1/2. देयरफॉर नंबर ऑफ ए एटम्स कितना हो गया 4 into 1/2 that is equal to 2. So total A atoms कितने हो गए 1 plus 2 3. So total number of A atoms per unit cell becomes 4. Now talking about B atoms. B atoms कहाँ होते थे एज सेंटर पे, एज सेंटर पे एंड बॉडी सेंटर. तो एज वाले का कंट्रीब्यूशन और बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन मतलब नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल फॉर एज एंड फॉर बॉडी आपको पता है कितना होता है, अगेन कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो कर लेते हैं. एज सेंटर की बात करें तो 12 एटम्स 12 contribution 1/4 and therefore number of B atoms यहाँ पे हो गया हमारा 12 into 1/4 that is equal to 3. आई थिंक मैंने कुछ गलती की है. 1 plus 2 3 होगा. A atoms नॉट 4 नहीं है 3 हो गए. पहले 1 आए हैं उसके बाद 2 आए. So this is 3 not 4. Now coming back to B atoms. और कहाँ है बॉडी सेंटर. एंड बॉडी सेंटर तो आपको पता है इसके होते हैं नंबर ऑफ बी एटम्स बॉडी सेंटर के लिए 1 ही होता है. सो नंबर ऑफ बी एटम्स per unit cell for body center is equal to 1. So total number of B atoms is equal to 3 plus 1 that is equal to 4. So A is to B. A कितना आया 3, B कितना आया 4. So stoichiometry or formula of the compound becomes A3B4, right? So I think इतने numerical practice अगर आपने कर लिए हैं, if you have gone through my whole video, have come to this end, I mean ये last numerical पे, तो आपको बहुत अच्छे से basic concepts clear हो गए होंगे, which are very essential. I'm again telling these are very essential before learning other concepts related to solid state. तो solid state में proceed करने से पहले please go through these concepts and please watch my whole video so that you gain अच्छे से understanding of the this particular concept of calculating the number of atoms per unit cell or the formula of the compound, right? So please go through the whole video